good program related to our Vigyan Jyoti. And no one except, I think, Dr. Khan will be a very, very suitable person for this. A woman by chance, but a scientist by choice. She will really be a great motivating force to our Vigyan Jyoti girls. In fact, all our Vigyan Jyoti girls will be very much keen to listen to her. She has a very, though young, but has a very long outstanding record of her academic acumen. I think her interaction with our students, her messages to our students will go a long way in inspiring them, taking STEM as a career and excel, for which purpose the Vigyan Jyoti program has been framed. I look upon a good interaction at the end, and all other people who have been associated with this webcast, where Dr. Sophia Khan will have a lead role to play. And in the time to come, more and more girl students will be attracted towards science as a career. First thing is that they must come to science, then they must realize their potential and excel in the fields of science. They are very much simple stage-wise milestones envisaged by our Department of Science and Technology. The first goal is that they should be very much serious and responsible learner. They should know what are going on in the world, what are the institutes which admit people, which can really be helpful for them to build science as a very big career, what are the preparedness things required, which are the institutes, what are the admission procedures. We are here to help them. If the students don't decide, we will not be of any use. The first thing is the student must decide as per their own ability, goals and resources. Once they decide, we will customize our facilitation accordingly. Then if they enter into one good professional college, say for example IITs or AIIMS or any other such institutes in India, abroad, half of the job is done. Because there you have a homogeneous group, you have high level of professorial and academic leadership there to guide you. And most importantly, you have a very, very yes. That is the very big condition for excellence. Once you get into that, you have to struggle, you have to work hard, you have to use your resources and your intelligence, your all the skills. And then when you come out, then you decide how to go to pure science. Because in India, there's a big paucity of pure science students. People just take graduations in engineering or medicals and they start earning their livelihood. There is nothing wrong with that. But there should be some sizable number who will take science as a career for a bit longer duration. They will go for researches, go for innovations, experiments, join labs, and all such things. Then they will be the faculty to the Vigyan Jyoti girls in future. So that type of cycle is very much required, and we hope that with Dr. Sophia Khan exactly doing this, she is taking that type of career where she is not only happy with her own being a scientist, but she is more happy when others join science because of her. I really congratulate all of you to be here, and my best wishes and namaskar to Dr. Sophia. Thank you. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. I'm Srinivasan, principal of JNV Mangalore, Karnataka. Good morning to everybody. Ma'am, around children from 150 schools, Navodaya Vidyalayas are watching this program in the YouTube live streaming. So they are very fortunate to listen to your lecture today. And let me take the privilege of introducing Dr. Sophia Khan to all the participants of today's webinar. We have with us
Dr. Sufia Khan, who is Associate Professor at Banasthali Vidyapeeth, which is the world's largest residential women university. And she is a scientist and professor by profession and a bio-entrepreneur by choice to nurture women scientists. She is a recipient of many national and international awards for contribution in science and innovation. And she has been successfully running the MHRD Center for Excellence, COE, on water and energy. She has founded her own spin-off company, Ramlin's Water Technologies Private Limited, from this COE. And currently, 8 technologies are being ready for the commercialization, and 4 of them have been patented. And Dr. Sufia Khan is recently awarded with the Niti Aayog Women Transforming Award among the top 30 women of our country. A success story was released as a women entrepreneur, leading change in India by Niti Aayog through none other than our Honorable Defense Minister, Shri Rajnath Singh. Her vision is to develop technologies for affordable, safe water and create employment for women. As a scientist, teacher, and entrepreneur, she is following the new path nurturing women scientists to become an entrepreneur, the path which is less traveled. And about the awards that he has got, she is the winner award of the Chai Barack Weiner Award 2019 for Women Entrepreneurial Research. And she has been awarded the CRISP Fellowship from University of Oxford in the year 2019. And a part of Dr. Sufia Khan's success story was released, as I told you, by our Defense Minister Rajnath Singh. She has been awarded various cash prizes. In the Shuruvat Pitching Competition 2018, she was awarded a prize money of rupees 25,000. And Shurarat Bas is an excellent initiative of the Global Education and Leadership Foundation in partnership with Niti Aayog. And she has received Young Scientist Award by Society of Genetics, Biotechnology Research and Development. She has got a recognition award for teaching and research in International Conference on Emerging Trends in Biotechnology and Sciences with a special reference to climatic changes 2015. She was the finalist in National Bio-Entrepreneurship Competition 2017 conducted by CCAMP Barack, Bangalore. And she was also a recipient of a Lifetime Achievement Award in the year 2015 by Indira Gandhi International Science and Technology Association. She was also awarded a Merit Scholarship by Board of Secondary Education, Ajmer. The list is endless. And she has around 7 publications in the last 7 years. So such a coveted personality. We have been very fortunate to have Dr. Sufia Khan today to address all the stakeholders of this Vigyan Jyoti program. We feel so honored and privileged, ma'am, to have you on this session. And I hope the children will definitely relish your lecture today. Thank you, ma'am. Over to you. Okay. Thank you and namaskar to all of you. Respected Benny Joseph, and thank you, Srinivasan sir, for giving me a very deep and nice introduction. And first of all the distinguished personalities from the DST and from the Navodaya Vidyalaya, and my young, all the young like girls who are listening to me. A very good morning to all of you. And it's very I'm very happy today. And it's very privileged to give a talk about my journey, how I proceed my science. And that was my passion because yesterday when Meenu called, you have to give the lecture among the young girls, because I thought my life mission was to ignite the young minds and to create the interest of science among the youngsters. Okay, so I took the science and innovation as my passion during my whole life. So it's my privilege to give this talk at this platform. So very good morning to each and everyone who are here and who are listening me on the YouTube. Okay, so starting, so because most of the people are from very different part of India, my talk will be like in the Hindi and the English mix. Okay, so and it is in the form of a story. Okay, so let me share one of my PPT.
Yeah. So first of all, I wish like to give an introduction. I'm Dr. Sufia Khan, professor and scientist by my profession, and entrepreneur by choice. And I have established my own company, which is Drumlins Water Technologies Private Limited, from my own established research center. तो आप जैसे जो बच्चे जैसे हम 9th, 10th, 11th, 12th में थी मैं, when I was in 9th, 10th, 11th, 12th, I have a dream. I saw a very good picture of Jurassic Park. And in Jurassic Park, what I have seen, like I saw the Spielberg Jurassic Park, in which they play with the DNA. From the DNA, they form the main like monsters and all these things. So it was a great inspiration to me to pursue my career in the biotechnology. And at that time in the 1991s, when I was like a small child, just like you, I wrote in my diary that one day I will play with the DNA, and I will establish my own research and innovation in the field of the DNA. And in the 11, 12, there was no subject of biotechnology. And when I came into the BSc, no one has heard about the term biotechnology. So I used to write so many letters to the DSP and the Department of Biotechnology, and few courses has been introduced at that time. And luckily I got the admission in the only, like in Rajasthan, one center has opened in the MLSU Science Center, and I got the admission among the 5 students. Okay, I'm telling you this story just because of you, क्योंकि आप जब इस स्टेज में हैं, अपनी स्कूल की स्टेज के अंदर हैं, what you sow, so shall you reap in your future. आज आपके अंदर बहुत सारे बच्चे आसपास हैं और जो अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, तो आप जो है, जो अपने आइडियाज अपने माइंड में इम्प्रिंट करेंगे और जो अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोचेंगे, you will become in the near future just like me. Okay. I got the opportunity just after my marriage, able to establish my lab just after 3 years back. I have established my lab into the whole area of the DNA. Okay. But this time, this takes like from 2000 to 2009, and completed my whole mission to complete this venture, or to complete this whole DNA fingerprinting lab. So one thing I would like to tell all the young girls who are listening to me, that they should dream high, and they should like observe the nature, and whatever you thought and think, you must write. आप अपनी डायरी में जरूर लिखें उस चीजों को, because it helps in building the process of a dream. आपको ड्रीम को बिल्ड अप करने में प्रोसेस होता है. तो ये जो आप देख रहे हैं, that you are seeing on this screen, this is an spin-out company. So what is a spin-out company? Spin-out companies are originated from our own labs or the university clusters on the basis of our research. So I'm very fortunate enough that I've been able to establish a very good center for excellence on water and energy, and I've established my own lab in the water and the DNA fingerprinting area. And when I joined this university, okay, so I would like to tell in this talk a journey from my own research lab to the Drumlins Water Technologies Private Limited. So it is a story of failures, frustrations, triumphs, and success, a story of evolution, a story of a transformation, and a story of the different women scientists who are working under me, and a story of the young entrepreneurs who are leading in this new innovation ecosystem. So this way is a new way to go. So where we are, a milestone, we have already established many milestones, but like a way to go in our future directions. So what you have to do, that you have to understand what are the spin out company, how we develop in our area. And in the science career, there are lots and lots of opportunities if you make your career in the science. But science is as much as interesting. जैसे आप नेचर को देखते हैं, तो मेरा एक ही चीज कहना है, जैसे आप बारिश को एंजॉय करती हैं, जैसे आप खूबसूरती को एंजॉय करती हैं, आप नेचर के अंदर फ्लावर को देखते हैं, जिस भी चीजों को आप देखते हैं, आप उसको ऑब्जर्व क्लोजली करिए, क्योंकि उसके पीछे एक हिडन मैसेज छुपा हुआ होता है, और दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन वहीं पर मौजूद भी है. So what I suggest to all of you, you have to develop and cultivate the art of observation. Okay, art of observation and roaming here and there in the nature, and to observe, just simple observe the things.
और इस जगह से जहां पर मैंने जब ज्वाइन किया था 2003 में, और बनसली विद्यापीठ इज द लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी वेयर आई हैव जॉइंड, and it is a NAC A++ university, and this university has given me a platform to groom myself in every sphere, being as a teacher, being as a scientist, and being as an entrepreneur. And I'm very, very thankful to the Banasli Vidyapeeth. And this campus has been situated at the semi-arid region. जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जो है you have to observe. So what I observe the surroundings of the Banasli, that this area. These are some glimpse of my university. So what I observed in the surrounding area, that many people suffered from the problem of fluorosis, and many young people has to gone through the knee replacement before the age of 40. And what struck me, and like my own daughter Sami has suffered from the dental fluorosis. And although I trained as a molecular biologist, और molecular biology और DNA fingerprinting पे मेरी लैब पूरी डेवलप थी बच्चों, लेकिन उसके बावजूद मैंने एक पेन को देखा चारों तरफ, और it inspires me to do work in that direction. और ये चीज देखी कि माना कि जो है हम एक डायरेक्शन सोच लेते हैं कि जब मैंने बीएससी में सोचा था कि नहीं मैं डीएनए पे काम करूंगी तो मैं कहीं और हिल ही नहीं सकती, बट दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ व्हेन आई डिसाइडेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो सॉल्व जब करते हैं हम साइंस के अंदर कोई चीज, तो आप सिर्फ बातें नहीं कर सकते, आपको बहुत सारा साइंटिफिक डेटा एक्सपेरिमेंटेशन करना होता है, उसको सिग्निफाई करना होता है, उसको लैब में प्रूफ करना होता है, और उस कॉन्सेप्ट को कोई भी जना कभी भी यूज करे तो उसको रिपीटेबिलिटी होनी चाहिए, उसका जो डेटा कंप्लीटली सिग्निफिकेंट होना चाहिए. तो जो हम आइडिया सोचते हैं और जो चीज हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें काफी लंबा चौड़ा टाइम पीरियड होता है. एंड इन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर जर्नी, जैसे आप अभी स्कूल के अंदर है, और स्कूल के बाद जब आप कॉलेज में आएंगे, आप सेल के स्ट्रक्चर को स्कूल में भी पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ते हैं, न्यूक्लियस भी पढ़ते हैं, लेकिन यही चीज आप पीएचडी में भी पढ़ेंगे, यही चीज आप एमएससी में भी पढ़ेंगे, और आपका लेवल जो है इंक्रीज होता चला जाएगा. The only thing that inspires you to be in a science, like science के अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें हैं, अगर आप देखते हैं चीजों को क्लोजली और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो इट गिव्स अ वाओ इफेक्ट. और वो जो वाओ इफेक्ट आता है, दैट इंस्पायर्स यू टू मूव अहेड इन योर लाइफ. और एक बार किसी ने अगर कोई रिसर्च के अंदर एंटर किया है, कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, और उसको बहुत अगर अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो दैट पर्सन कैन नॉट स्टॉप. कोई भी चीज अगर चाहे उसको कुछ भी चीजों से हटा दिया जाए, लेकिन फिर भी वो अपनी जो है सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है. जैसे आपने कभी मेंडल के बारे में सोचा है कि मेंडल को कोई अवार्ड वगैरह कुछ नहीं मिला, लेकिन मेंडल अपनी पूरी लाइफ के अंदर अपने जो क्यूरियोसिटी थी उसके लिए वो काम करता रहा. तो यानी अवार्ड एक सब्स्टिट्यूट है, बाय प्रोडक्ट्स है सारी चीजों का. लोग आपको रिकॉग्नाइज बाद में करेंगे, लेकिन आपको करना क्या है, यू हैव टू बी इन योरसेल्फ, यू हैव टू लिव इन नाउ, you have to be with yourself and fully confident and fully satisfied from what are you doing now. और उन चीजों की क्यूरियोसिटी को करने के लिए आप छोटे छोटे चीजों को करिए. और आपका जो हिस्ट्री है, जितने भी साइंटिस्ट हैं, चाहे वो एडिसन है, चाहे आइंस्टीन है, आपको बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं है, आपको एक इमेजिनेशन, एक क्रिएटिविटी की जरूरत है टू बिकम ए वेरी वेरी गुड साइंटिस्ट. तो अगेन एक जो दूसरा लेसन जो आप लोगों को मैं कहना चाह रही हूँ यंग गर्ल्स को, वो ये है कि अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करें, उसमें से कोई प्रॉब्लम निकालें, और प्रॉब्लम के बाद जो है ये देखें कि ऐसी क्या चीज है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है, और आप अपनी लाइफ का कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं साइंस के अंदर. दूसरी चीज, टू इन्वेंट द व्हील यानी कि जब पहिया बन चुका है, दूसरी बार वापस पहिया बनाओगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी. So reinvent the wheel. You need your innovation, you need your creativity. So you have to solve the problems in an innovative manner. इनोवेटिव मैनर के अंदर आपको सॉल्व करना है. और इससे ना केवल आप पैसा कमाएंगे, इससे ना केवल आपको एक प्रेस्टीज मिलेगी, इससे आपको भी बहुत फायदा होगा और सोसाइटी को भी फायदा होगा. पर्पस एंड प्रॉफिट्स कुड गो टुगेदर. तो यहाँ जो चीज है, यही चीज कि हमने इस वाली जो प्रोजेक्ट है इसको लिया और ये देखा कि मैं अब जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अलावा जो है मुझे इस प्रॉब्लम को, फ्लोराइड की प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करना है. फ्लोराइड राजस्थान में बहुत ज्यादा एंडेमिक है, और ये देखिए जिस जगह से मैं प्लेस को बिलोंग करती हूँ, और ये इंडिया के कई सारी जगह पर भी जो है काफी हद तक फैला हुआ है. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द फ्लोराइड? तो आपको जो है ये चीज के बहुत सारी टेक्नोलॉजीज उस वक्त भी अवेलेबल थी, आज भी अवेलेबल है.
So I started working many years back कि मैं देखूं कि ऐसी क्या चीज है जो बाकी लोगों से सॉल्व नहीं हो पा रही है. So what I have seen that fluoride is a negative ion, छोटा सा है. दूसरा, many technologies target the bound fluoride, not the ionic fluoride, and it can pass through the RO membrane sizes. तो कई बार क्या होता है कि आपके जो existing technologies हैं वो भी जो है इसको पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रही हैं. तीसरी जो चीज है वो ये था कि गांव के अंदर लाइट है नहीं होती है, और ना ही गांव के लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि उनको एक कॉम्प्लेक्स टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की जरूरत हो और वो बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मशीनों को चला पाए. सो व्हाट इज इन माय माइंड दैट वन डे आई विल बिल्ड अ वेरी वेरी सिंपल सॉल्यूशन for the problem of fluoride, and I will make India a fluoride free country. So I started luckily and observed two things, that water and energy are the two main crises of the world. और आने वाले टाइम के अंदर जो है पेट्रोल खत्म हो रहा है, बाकी चीजें खत्म हो रही हैं, पानी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो है गोल्ड से भी ज्यादा महंगा बिकने लगेगा. So whole the world is looking for a simple, cleaner, economical and a sustainable solution. और इसी वजह से जो है मैंने चीजों को लिया, क्योंकि आप हवा में बात नहीं कर सकते. यू हैव टू राइट डाउन द प्रोजेक्ट, क्योंकि जो प्रोजेक्ट स्टाफ्स हैं उसको भी आपको सैलरीज देनी है, जो आपके अंडर में काम करते हैं दे ऑल्सो नीड मनी. यू ऑल्सो नीड मनी फॉर टेकिंग द गुड रिसर्च, क्योंकि रिसर्च भी विदाउट मनी होते नहीं है. सो वी रॉट मैनी प्रोजेक्ट्स. यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स का नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं. सो द चेंजिंग थिंग फॉर मी इज लाइक द MHRD सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन अवर ओन यूनिवर्सिटी. वो हमें जो है 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला था, और वो जो चीज है हमने इस्टेब्लिश करी उस फील्ड के अंदर. और मीनवाइल यूनिवर्सिटी आल्सो गॉट सो मेनी ऑफ द फिस्ट एंड क्वेरी प्रोग्राम्स, और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा काफी डेवलप हुआ. और रिसेंटली भी जो है हम लोग कई सारे वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में जो कंसोर्शियम प्रोजेक्ट है उस पर काम कर रहे हैं, इनोवेशन के प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं, और कंपनी के अंदर भी काम कर रहे हैं. तो प्रोजेक्ट्स लाना इम्पोर्टेंट है. तो जो है ये जिसे जैसे आप धीरे धीरे अपने आगे लाइफ के अंदर बढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि कई सारी चीजें जो है आपको करनी होती हैं. बीइंग एज अ साइंटिस्ट यू कुड बी ए गुड लीडर, यू आर ए टीचर, यू आर एन एंटरप्रेन्योर. तो एक ही चीज के ऊपर रहते हुए ये इतना अच्छा प्रोफेशन है कि आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने का इसमें पूरा मौका मिलता है. तो जैसे मैंने अभी कहा था कि हम ऑब्जर्वेशन देखें, तो मैंने जो स्टार्ट किया वो यही किया था कि मैं नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर मूव करूं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा एबिलिटी थी. तो जैसे ये जो डायग्राम दिखा हुआ है ये पानी की ड्रॉपलेट का है, और आप ये देखिए कि जो ये पानी की ड्रॉपलेट होती है, ये जो नैनो स्केल पे जो हम काम करते हैं वो हमारे जो बाल होता है, हेयर होता है, उसका 80,000 छोटा पार्ट है. कैन यू इमेजिन? और आज आप जाके अपने घरों पर देखिए, अगर वाटर की जो है क्रिस्टल्स डाल के देखिएगा और आप ये देखिएगा कि उसकी कैसी इमेजेस आती है, यू विल वंडर्स कि वाटर के क्रिस्टल्स एकदम डायमंड के जैसे होते हैं. तो हमारी नेचर के अंदर बहुत ज्यादा खूबसूरती छुपी हुई है. हर चीज इतनी खूबसूरत है अगर आप नैनोस्कोपिक लेवल के ऊपर देखेंगे या मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे. और यही चीज जिसने मुझे इंस्पायर किया कि मुझे अच्छी अच्छी चीजें माइक्रोस्कोप्स में देखना बहुत ज्यादा शौक था. मुझे छोटी छोटी चीजें जो इतनी प्यारी लग रही हैं उसको क्यूरियोसिटी से देखना, उसको एनालाइज करना और उसको आगे उससे सॉल्यूशन करना, और यही चीज मुझे साइंस के अंदर बहुत आगे लेके गया. तो हम लोगों ने पानी के ऊपर काफी सारी चीजें करी बच्चों, और जैसे हमने सेंसर्स बनाए वाटर के फ्लोराइड से. और हमारे माइंड में शुरू से ये था कि कोई ऐसी चीज बननी चाहिए जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, वो रॉबस्ट हो, और जो है ग्रीनर हो, और जिसके अंदर जो है हम लोकल मैन तक यानी कि आखिरी इंसान तक उसको पहुंचा सके. दैट वाज माय ड्रीम. सो लकीली ये 2009 के अंदर जो है ये चीज हुई थी, और आज हम 8 जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको कमर्शलाइज करने की पोजीशन के अंदर भी हैं, एंड वी हैव डेवलप्ड आवर ओन कंपनी आल्सो. तो अभी जैसे आपने यहाँ पे देखा कि अगर हम जब जिस चीजों पे काम करने लगते हैं बच्चों, तो काम करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप पहली बार काम करो, आपके अलावा भी 50 लोग उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं. एंड यू आर इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, एंड यू हैव टू रीडिफाइन योरसेल्फ हाउ एंड व्हाई योर सॉल्यूशन इज यूनिक. और आपकी अगर सॉल्यूशन अगर यूनिक है तो वो किस तरीके से लोगों को फायदा पहुंचाएगी. अगर आपका बहुत ज्यादा यूनिक इनोवेशन है, यू कैन अर्न लॉट्स ऑफ मनी. आप काफी सारे जो है इनोवेशंस के तहत जो है आप पेटेंट फाइल करा सकते हैं, पेटेंट को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से यू कैन अर्न लॉट्स ऑफ मनी आल्सो. यू कैन आल्सो एस्टैब्लिश योर ओन कंपनीज आल्सो. तो ये जो एक स्टीरियोटाइप्स पिछले सालों में कई सालों में ये था कि एक टीचर प्रोफेसर जो है साइंटिस्ट ही हो सकता है, वो एक जो है कंपनी नहीं खोल सकते हैं और बाकी चीजें नहीं हो सकती है, या फिर वो कभी
किसी स्टेट्स के अंदर जो है आपके सेकेंडरी लेवल पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, अब आपकी स्काई इज द लिमिट, यू कैन एंटर इन एनी स्ट्रीम्स। आप गवर्नमेंट के अंदर भी काफी लंबे, यानी प्रोफेसर के भी बाद बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जिसको आप ले सकते हैं और आप जा सकते हैं, ठीक है। बट द थिंग इज दैट यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन योर ड्रीम्स। आपको इसी प्रोसेस के थ्रू अपनी चीजों को क्लियर रखते हुए आगे मूव करना होगा। और आप ये देखिए कि जैसे ये चीजें देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि काफी सारी टेक्नोलॉजीज काफी कॉम्प्लेक्स थी, कुछ चीजें बहुत धीरे हो रही थी, कुछ चीजें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट थी, कुछ आयन एक्सचेंज पे होता और कुछ फ्लोराइड के ऊपर। सो एवरीथिंग इज सो कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप घरों में भी देखते हो आज की तारीख में, आरओ में से बहुत सारा पानी, ब्राइन जो है वेस्ट होता है बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी उसकी रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा मिनरल रिच वाटर उसके अंदर हमें नहीं मिल पाता है। सो व्हाट वी नीड इन द अपकमिंग फ्यूचर कि हमें ऐसी कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी ड्राइवन जो है टेक्नोलॉजीज मिले, जिसके अंदर हम हो सकता है सोलर एनर्जी इस्तेमाल मिले, वो प्रोजेक्ट्स भी हम चला रहे हैं, LCRD का, DST का जो है, या फिर हम कोई एनर्जी ही इस्तेमाल ना करें और जो है ग्रेविटी बेस्ड के ऊपर जो है वाटर का प्यूरिफिकेशन हो जाए। तो ऐसे तमाम चीजों के ऊपर आपका सोच की जरूरत है। और जो यंग लड़कियां मुझे सुन रही हैं, तो आप लोगों में बहुत ज्यादा एक इनोवेटिव माइंड है, बच्चों क्रिएटिव माइंड है। कई बार हम बड़े बड़े लोग जो हैं अपने बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस से, लॉजिकल माइंड से जो है वो क्या हो जाता है, अपने माइंड को बहुत ज्यादा चीजें भर लेते हैं। आपका माइंड बहुत एक फूल की तरीके से है और आप एकदम फ्रेश हैं अभी, तो आपके जो आइडियाज हैं वो भी कंप्लीटली क्या है, फ्रेश हैं। तो आप जैसे बच्चे बहुत कुछ इसके अंदर जो है आगे कर सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि इंडिया का और वर्ल्ड का जो सिस्टम है अब लड़कियों के लिए और आगे के लिए जो इनोवेशन इकोसिस्टम है वो इतना रिच हो चुका है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर आप अपने सब्जेक्ट से प्यार करते हैं, साइंस से प्यार कर सकते हैं, तो एक छोटी सी चीज नहीं कि आप साइंटिस्ट ही बनेंगे, आप साइंस के कम्युनिकेटर्स बन सकते हैं। आप छोटे छोटे से जो है डिजाइन्स बना सकते हो जिसको कि हम जो है टेक्स्ट किताबों के अंदर इस्तेमाल में ले सकते हैं। कई सारी क्रिएटिव चीजें, और आप फर्स्ट ईयर से ही जो है कई सारी चीजें ऐसी करके मैं बच्चों को बताती हूँ कई बार, तो वो पैसे अर्न कर रहे होते हैं साइमल्टेनियसली व्हाइल परस्यूइंग देयर डिग्रीज आल्सो, सो दे आर हेल्पिंग अस इन ए वे। सो इट्स अ टू वे प्रोसेस। तो वो सीखते भी हैं, वो कमाते भी हैं, और वो ना सिर्फ जॉब सीख करते हैं, वो जॉब क्रिएटर बनते हैं आगे। तो इस तरीके से जो है अगर आप भी अपने को, अपनी लिमिटेशंस को छोड़ेंगी और आगे अच्छा सोचेंगी, तो बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे बच्चों आप लोग आगे के लिए। और अपना जो ये जैसे मैंने कहा आपकी इनोवेटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग है, उसको बरकरार रखिए बस। तो हमने भी जो है पौधों को लेकर, माइक्रोब्स को लेकर, नैनो पार्टिकल्स को लेकर काफी काम किया बच्चों, और जो है जो एक ग्रीन सिस्टम डेवलप किया जिसके थ्रू की जो है कंटामिनेंट्स को या फ्लोराइड्स को हम रिमूव कर सकते हैं। कई बार हमने बहुत सारे, जब आप काम करते हो जैसा भी हमने कहा, तो साइंस के अंदर आपको पब्लिकेशंस करने पड़ते हैं काफी सारे। वी गॉट सो मेनी ऑफ पब्लिकेशंस। आप एल्सवेयर पे देखिए कि हमने 50 से ज्यादा जो है काफी सारे जो है पब्लिकेशंस कर दिए हैं इन सारी चीजों के अंदर। और अच्छे पब्लिकेशंस से आपकी रेपुटेशन बनती है हमेशा, यू फील रिकॉग्नाइज। और दूसरी चीज ये कि साइंस जब हम करते हैं तो आपकी पीयर जो ग्रुप है वो आपको क्या करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, और उसके अंदर साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर वो जो कॉन्सेप्ट है और वो जो हाइपोथेसिस है जो आपने डेवलप करी है वो प्रूफ होनी चाहिए, और उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं और आपको प्रूफ करना होता है। तो इस तरीके से हमने कई सारी चीजें करी बच्चों, और एक टेक्नोलॉजी निकाली नैनो फाइटो रेमेडिएशन। अब कई बार ये होता है जैसे आप पौधों को हमने इस्तेमाल में लिया फ्लोराइड को रिमूव करने के लिए, लेकिन ये जो प्रोसेस था बड़ा स्लो था कि अब इसको इम्प्रूव कैसे करें, हम किसको फास्ट कैसे करें, ठीक है। जैसे आरओ में तो आपने डाला और पानी का ग्लास निकल गया उसके अंदर, तो ये जो प्रोसेस है वो बड़े स्लो प्रोसेस है ग्रीन प्रोसेस, इसके अंदर कोई ब्राइन वगैरह नहीं निकल रहा। तो हाउ टू मेक दिस प्रोसेस वेरी फास्ट, तो ये क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को हम फिर सॉल्व कैसे कर सकते हैं और इसको सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं। सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि जो चीज आप यूज करो वापस से रीयूज होके एक जीरो क्लोज सर्कुलर चीजें बननी चाहिए, कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा क्लोजली देखोगे तो इनके आंसर्स भी मौजूद होते हैं, एंड यू हैव टू वर्क हार्ड टू सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स। और यही वजह है कि हमने इनके ऊपर भी काफी सारा चीजों का काम किया। हमने जैसे नैनो पार्टिकल्स होते हैं बच्चे, जैसे अभी मैंने बताया, वो फिजिकल और केमिकल मेथड से बनते हैं।
अब हमें ये बनाना था कि थोड़ा सा वेस्ट मटेरियल से बन जाए और एक ग्रीनर मेथड से बन जाए। ग्रीन मेथड का मतलब ये है कि हम बायोलॉजिकल मेथड से क्यों ना जो है नैनो मटेरियल्स का सिंथेसिस कर लें और उसको क्यों नहीं बायोलॉजी के फॉर्म में उसकी टॉक्सिसिटी चेक करें या बाकी चीजें चेक करें। तो ये सारी चीजें हमने करी और कई तरीके के पार्टिकल्स भी बनाए और नैनो मटेरियल्स भी बनाए, उसको देखा, प्लांट्स पे भी देखा और उन चीजों से हम आगे बढ़े काफी हद तक और हमने अपने लैब्स को एस्टेब्लिश किया। जैसे आप लोग जैसे बच्चे जैसे चने के दानों के बाद जैसे 9th-10th में कई सारे एक्सपेरिमेंट आप करते होंगे, तो हम लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट्स किए इस तरीके से। और नैनो मटेरियल्स का जैसे एक आप जब बड़े होंगे तब सीखेंगे कि कार्बन नैनो फाइबर्स क्या चीज होती है, हम इसको लैब में कैसे सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है, जैसे हमने इसको जब चने के साथ एक्सपोज किया सीड्स के अंदर, तो क्या देखा हमने कि इसकी ग्रोथ जो है प्लांट की बहुत ज्यादा हो गई, वाटर अपटेक कैपेसिटी जो है वो बढ़ गई, जर्मिनेशन वो बढ़ गया, इसका बायोमास वो बढ़ गया। तो काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले और अपटेक जो है हैवी मेटल्स का वो बढ़ गया। तो इन चीजों को हमने काफी हद तक आगे बढ़ाया और एक नया एरिया नैनो फाइटोरेमेडिएशन टेक्नोलॉजीज का इंट्रोड्यूस किया। जैसे अभी मैंने बताया कि आपको सब चीजें प्रूफ करनी पड़ती है, तो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। देखिए सैमटेम के रिजल्ट्स हैं, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी के रिजल्ट्स हैं, और हम जो डालते हैं जैसे कॉर्टेक्स मेडुला तो आप जानते ही होंगे सारी चीजें, ठीक है, जाइलम फ्लोएम, उसके अंदर अपने नैनो पार्टिकल्स को देखते हैं कि इसका लोकेशन क्या है, कहाँ वो पहुंचा है, कैसे वो पहुंचा है, किस तरीके से इफेक्ट आता है, क्या जो रूट और शूट लंबी हुई है या नहीं हुई है। तो ऐसे तमाम तरीके की चीजें हम जब करते हैं तो हम जब देखेंगे क्लोजली तो हम सारी चीजों को सीखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो कुछ मटेरियल्स बहुत अच्छे होते हैं प्लांट्स के लिए और उसको हम आगे किस तरीके से इस्तेमाल में ले सकते हैं। और जैसे मैंने अभी बताया कि अब हम वेस्ट के साथ जो है काम करना चालू किया था कि हम इसको किस तरीके से जो है कॉस्ट इफेक्टिव बनाए। तो हम लोगों ने सारे वेस्ट मटेरियल से, यहाँ पे मैंने फोटोग्राफ्स नहीं दिए हैं, लेकिन बहुत सारे जैसे वेस्ट मटेरियल जैसे फ्लावर वेस्ट है, पेटल वेस्ट है, आपके बार्क है, आपके वुड है, और बहुत सारी चीजों से जैसे हम ये जैसे जोजोबा के सीड से हम ऑयल भी निकालते हैं, लेकिन उसका बचा हुआ पार्ट ये जो है डिफेटेड मील है, ये वो ऑयल है जैसे 300 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर है। और जैसे लॉरियल के सारे प्रोडक्ट्स जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ये जोजोबा पाया जाता है, यानी जोजोबा का ऑयल होता है। तो जो वेस्ट है, इस वेस्ट से भी हमने नैनो पार्टिकल्स बना दिए। तो इस तरीके से आप जब भी वेस्ट को लेके बनाएंगे चीजें और उसको अपनी चीजों को यूटिलाइज करेंगे तो कॉस्ट भी कम आएगी और एनवायरमेंट जो है बहुत सारी चीजों से फ्री होगा। अब एक बार जब मैं तुम्हारे जैसे बच्चों के साथ जब काम कर रही थी और बच्चे मेरे पास आए कि मैम व्हाट आई शुड डू, कि जो नैनो मटेरियल्स हम बना रहे हैं उसकी लीचिंग हो रही है, जैसे पानी में आप डालोगे तो लीच कर जाता है, यानी कि वो रिमूव आप किस तरीके, जैसे आज अगर पानी में डाल रहे हैं तो उस नैनो पार्टिकल्स के साथ तो आप पी नहीं सकते हैं। सो हम लोग जब पी रहे थे तो भी द आइडिया स्ट्रक कम इन माय माइंड लाइक व्हाई वी शुड नॉट मेक टी बैग्स जस्ट फॉर द रिमूवल ऑफ फ्लोराइड एंड द अदर हैवी मेटल कंटामिनेंट्स। हमने उस पर काम किया, हमने फाइबर्स पे काम किया और हमने टी बैग्स का काम किया, और ये सब चीजें हमारी जो है क्या हो गई, नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट जो कि बहुत अच्छा जर्नल माना जाता है साइंस के अंदर, उसमें हमने पब्लिश किया कि टी के अंदर और पानी के अंदर जो फ्लोराइड होता है उसको टी बैग से आप रिमूव कर सकते हैं। और ये जो चीज है वो काफी हद तक वाइड मीडिया सर्कुलेशन हो गया। अब लोगों ने कहा हमसे कि मैडम आप जो है ये जो चीज कर रहे हो गए, पानी के अंदर डाला और फ्लोराइड रिमूव हो गया, तो ये तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, आप इसको आगे बढ़ाइए। तो उसके बाद जो है इसी टाइम पीरियड के अंदर मेरे कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो पोस्ट डॉक्स के लिए फॉरेन चले गए और बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो इंडिया में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और कई लड़कियां स्पेशली जो कि बाहर नहीं जा पाई। तो व्हाट हैव सीन कि व्हाई आई शुड नॉट डेवलप और लाइक एस्टैब्लिश अ गुड कंपनी, ताकि जो है मैं उन बच्चों को रिटेन कर पाऊँ। मेरे पोस्ट डॉक्स बच्चे बहुत अच्छे हैं, कोई कैम्ब्रिज है, कोई न्यूयॉर्क है, कोई स्टैनफोर्ड है, कोई कहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जगह काम कर रहे हैं बहुत। तो उन लोगों के लिए, उनको रिटेन करने के लिए आगे इन चीजों के अंदर मैंने लीड ली और एक जो है ना तो सिर्फ सेंटर फॉर एक्सीलेंस के अंदर हमने काम किया, उसके अलावा एक और स्टेप लिया और वो था दैट्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी। तो जर्नी बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, और यहाँ जो मेरा स्टेप था फ्रॉम अ साइंटिस्ट टू द एंटरप्रेन्योर, और ये बहुत डरावना स्टेप भी था क्योंकि इट्स नॉट सो इजी टू एस्टैब्लिश द कंपनी, यू नीड अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल सेट्स, और अलग अलग स्किल सेट्स आपको जरूरत होती है। बट the only two motivation ke one day I want to make India fluoride free, and second one I want to create the employment and create the opportunities for the women scientist and the entrepreneur. These two key motivation bounds me to go ahead in my life and to do something that has a very great social impact.
So I established this company in 2019. And very happy to say that we are the team of the diverse team members. अब जैसे आप जब सोचते हैं तो एक ही स्टेज के ऊपर आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी तो आप उसी तरीके के लोग थे, उसके बाद आपने नैनो पे पूरी स्टैब्लिश कर दी लैब तो नैनो की तरीके से. But for the company you need different skill sets of people. You need finance people, you need marketing people, go to market, and you need industry people. आपको मेंटर की जरूरत होगी और आपको अलग अलग लोगों की जरूरत होगी. तो जो है I'm happy to say these are the key members who are working in my company. But the important thing is that during the whole course of my life, like 17 years I have teaching and research experience, और जहाँ जहाँ मेरे बच्चे गए वो इस कंपनी से जुड़े हुए हैं और ये कंपनी उन्हीं की है, एक तरीके से वही लोग चलाते हैं इन सारी चीजों को, और जो है वो आउटसोर्स करते हैं, वो चीजें डेवलप करते हैं, और इस तरीके से हमारी कंपनी जो है काफी हद तक आगे मूव कर रही है. So what we have developed, we develop a very good product, और जो कि अब 6 months के अंदर जो है मार्केट के अंदर आने वाला है, और हम इस पे 5 पेटेंट्स करा चुके हैं. ये वो चीज है जिसको आप सिर्फ टंकी में डालेंगे तो जो है फ्लोराइड रिमूव हो जाएगा. तो इस तरीके से ये काफी जो बड़ी बड़ी टंकियां हैं उनके अंदर आप इस रॉड को जो है फिक्स कर सकते हैं, और रॉड के बाद जो है ये 1000 लीटर या 500 लीटर में से फ्लोराइड रिमूव करेगा. और इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की जरूरत नहीं है, ये लाइट है, ये यूजेबल है, ये मेम्ब्रेन फ्री टेक्नोलॉजी है, और सिर्फ आप डालिए और निकालिए. So my dreams comes true and I'm constantly working hard to improve this product. और इसके साथ हमने फिर एक और चीज करी कि हमने सेंसर बना दिया फ्लोराइड का. अब जब सेंसर पे काम कर रहे हैं हम, तो सेंसर के लिए हमें 1000 लोगों की जरूरत पड़ गई. आज मेरे ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग हैं, सेंसर्स के लोग हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लोग हैं, और मेरे ग्रुप में केमिकल इंजीनियर्स जो है वो काम कर रहे हैं. तो जब आप किसी प्रोडक्ट पे काम करते हैं तो एक एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं होती, यू नीड डिफरेंट स्किल सेट्स पीपल एंड डिफरेंट माइंड्स. तो लकीली मैं इनसा विजिटिंग फेलोशिप के लिए जो है एक बायोसेंसर ग्रुप मैंने ज्वाइन किया था, वहां से मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, और वहां ही से जो है हमने सेंसर ग्रुप का भी जो है एस्टेब्लिशमेंट किया. आज हम AI पे भी काम कर रहे हैं फ्रॉम जर्मनी. आई हैव एन कोलैबोरेशंस विद द ऑक्सफोर्ड आल्सो, और जो है वाइजमैन इंस्टीट्यूट इजराइल के अंदर अभी हम गए थे, तो वहाँ के भी बहुत अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूशंस के साथ हमारे कोलैबोरेशन है. And during the whole course of my journey, I won so many of awards for this innovation. I got the 50 lakhs direct grant for the company. I am the Chevening Fellow of the University of Oxford, and Women and Pure and DST Water Innovation Center I got from the DST, and Drumlins Water Technologies is the consortium, it is a part of this project. And I'm very, very blessed teacher on this earth who has been loved by my students, and I'm here just only due to my students. I can proudly say these things to all of you, क्योंकि आप जब देते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, बच्चों का जब प्यार आपको मिलता है तो उससे आप बहुत ज्यादा आगे जाते हैं. ठीक है, अब ये सब चीजें तो आपको कागजों में नजर आती हैं, लेकिन जो चीज आपको दिखती है वो ये होती है कि ये सब चीज पॉसिबल ही तब हो पाती है when you nurture the things. और ये भी सारी चीजें हैं कि हम लोगों ने 10 करोड़ की 10 lakhs जो 10 billion ग्रांट्स जो है कंपनी के लिए इंट्रोड्यूस करी. आई गॉट 5 lakhs कैश प्राइज. आई गॉट दी अवार्ड्स फ्रॉम दी ऑक्सफोर्ड ऑल्सो, एंड शी इज किरण मजुमदार जो कि हमारी इंस्पिरेशन है. एंड रिसेंटली जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की जो स्टोरी जो है वो राजनाथ सिंह ने जो है रिलीज करी थी, एंड ड्रमलिन्स वाटर टेक्नोलॉजीज इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट. So what is the success recipe जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं, जो बच्चे 9-10 से onwards होके 17 साल से बाद, यानी it takes like 17 years to reach at this stage. So the another thing, how you could do these things. So my one important suggestion to all the young girls that you start inner engineering. Inner engineering का मतलब ये है कि ask deep questions to yourself at a very early stage of your life. आपको बहुत बातें हवा में लगेंगी ये सारी, लेकिन जो है जब आपका जो चीजें होती हैं कि आपको पता है कि मेरी लाइफ का पर्पस ये है, मेरी लाइफ में मुझे जाना कहाँ है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं पर वो बहुत अच्छे डिसीजंस नहीं लेते हैं, और जो जिनका गोल क्लियर है, जिनका पर्पस क्लियर है, लेकिन वो कम इंटेलिजेंट है या बहुत कुछ, वो धीरे धीरे चलते हैं एक सही डायरेक्शन के अंदर, तो अल्टीमेटली वो पहुंच ही जाते हैं. तो मेरे सभी बच्चों से ये कहना है कि दिशा इंपॉर्टेंट है, चलना फास्ट और स्लो इंपॉर्टेंट नहीं है. इस स्टेज में आप ये देखें, आप सब बच्चों में एक यूनिक एबिलिटी है, एक अलग से प्रतिभा है. एवरी इंडिविजुअल गर्ल इज एन
लाइक सेपरेट आइडेंटिटी और एक उसका एक इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन है. सो ऑलवेज प्राउड अबाउट यूर सेल्फ और अपनी उस स्किल सेट को बढ़ाइए. डोंट कॉपी पेस्ट फ्रॉम X, Y और Z. दिस इज माय हम्बल सजेशन टू ईच एंड ऑल ऑफ यू, because now the new generation has been trapped by the digital toxification and not been able to go into the core of what he or she is actually. और मैंने कई सारे 11th-12th के बच्चों को, 9th-10th के बच्चों को देखा है, सबसे ज्यादा जब वो आते हैं तो 11th-12th में एक ही मकसद रह जाता है उनका कि इंजीनियरिंग के अंदर या फिर मेडिकल के अंदर जाना. और इंजीनियरिंग, मेडिकल और या फिर एक दो और प्रोफेशन है, उसमें अगर नहीं जाते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, ड्रॉप करते हैं या बाकी चीजें करते हैं, उसके बाद सिलेक्शन जब नहीं होते तो वो निराश हो जाते हैं, या जो भी चीज उन्होंने 1-2 साल करी वो निराश हो जाते हैं. पर आप लोगों को ये बता दें कि मेरा खुद का PMT में सिलेक्शन नहीं हुआ था, 12 नंबरों से मैं रही थी, मेरी खुद की 10th बोर्ड में मेरिट स्कॉलरशिप्स मुझे मिल चुकी हैं. लेकिन ये सब चीजें, लाइफ एक जर्नी है और आपको सिर्फ चलते रहना है. ठीक है, सिर्फ चलते रहना है और अपना एक मकसद, एक एम बनाना है और आपको हार्ड वर्क करना है. आप अपने जीवन के पहिए में आज नीचे हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कल आप ऊपर होंगे उसके अंदर. तो हमेशा चलते रहिए और अपना आप को डिमोरलाइज मत करिए किसी भी तरीके से. आपका पूरी लाइफ के अंदर एक इवोल्यूशन होता है, किसी को कुछ पता नहीं कि कौन सा बच्चा कब जगेगा. तो आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करिए और आगे बढ़िए. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो है बच्चों एग्जीक्यूशन फैक्टर. एग्जीक्यूशन फैक्टर जैसे आज तुम्हारी मम्मियाँ कहती है कि उठ जाओ सुबह सुबह तुम लोग जल्दी और ये करो वो करो, तुम्हारे टीचर्स कहते हैं तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए. पर मुझे लगता है कि जिस इंसान को उसका पर्पस पता है या उसका गोल मालूम है या उसका सामने एक विजन है, उसको उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है. वो खुद से सेल्फ गवर्न होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होता है. और जब एक बार उसका जो है मकसद उसके सामने होता है, तब आप उसके अंदर कई सारे इनोवेशन और क्रिएटिव चीजों से उसको निखारने की कोशिश करिए और अपनी अच्छी हैबिट्स बनाइए. सक्सेस से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो मुझे लगता है एक अच्छी हैबिट्स बनाइए. रोज 1 घंटा खेलने की हैबिट बनाइए, रोज जो है वो सब चीजें करिए जो कि आपको अच्छी लगती हैं. तो दैट विल क्रिएट ए लाइक आपको बहुत ज्यादा आगे लेके जाएंगी ये चीज. Or you can do the innovation in the career by 4 things like you should develop the art of creative thinking और good observation skills का मैंने शुरू से बात बताई है. And the third is the oral and the written communication skills, जो 3C की बात हम करते हैं. And fourth is the मतलब you must develop your ability to whatever you gain in your life, जो आप knowledge gain करते हैं उसको अप्लाई कर पाए. जैसे आप क्लास के अंदर आज आपको बॉटनी पढ़ाई, कभी केमिस्ट्री पढ़ाई है, बाकी चीजें हैं, पर दीज आर नॉट सेपरेट साइंसेस. ये सेपरेट साइंसेस नहीं होती है. एक जब आप किसी चीज को सॉल्व करने लगे तो यू हैव टू टेक बॉटनी, zoology, physics and each and everything and you are able to compile it. So that's the intelligence comes और इसी जगह पे आपकी इंटेलिजेंसी आती है. और मेरा सभी बच्चों से जो गर्ल चाइल्ड सुन रही है, मुझको ये कहना है, खामोशी से बनाते रहो पहचान अपनी, हवाएं खुद ब खुद तुम्हारा नाम गुनगुनाएगी. आपको कोई जाने या ना जाने एक दिन, लेकिन जब आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो नेचर अपने आप लोगों से आपका तारुफ करा देगी. ठीक है. और दूसरी चीज, चाह रखने वाले अपनी मंजिलों को ताकते नहीं है. कभी भी आप ये न सोचें मेरी किस्मत में ये नहीं है वो नहीं है, वो अपनी किस्मत खुद लिखा करते हैं. Destiny could be written by yourself. Your design, your life should have a purpose and your life should be designed in a beautiful manner. It should not be accidentally. यानी एक्सीडेंट से लाइफ को मत जिए. एक पर्पसफुल लाइफ है, छोटी सी लाइफ है, उसको खूबसूरत बनाइए, एंजॉय करिए और आगे बढ़ते रहिए. और डेस्टिनी आप खुद बना सकते हैं, अपनी जैसा चाहे वैसी चीजें बना सकते हैं, जैसी सोच हो वैसी आप अपनी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं. And the third most important thing, in the occasion of the World Women's Day, like I should take this advantage to take you all the girls, you should because आप आगे बहुत जो है you will be a very beautiful moments in the coming future. So what you have to do, you have to fall in love with yourself, बच्चों. And woman has a very great power of nurturing. So you should not true love to yourself, but you should spread the true love. True love means आप अपने काम से प्यार करिए, अपने आसपास से काम करिए, आपके स्कूल से प्यार करिए, अपने टीचर से प्यार करिए, and spread the power of true love in the community and you will see the wonders of it. और आप इस चीजों के wonders देखेंगे और जैसा आप seeds बोते हैं वैसे ही आप लेंगे. और हमेशा मैं एक बात कहती हूँ अपने बच्चों से कि आज आप अच्छा करें, जरूरी नहीं कि नेक्स्ट मोमेंट जो है वो चीज आपके साथ हो जाएगी और अच्छा आपको मिलेगा. हो सकता है उसका फल आपको 10 साल बाद मिले और हो सकता है वो व्यक्ति ना दे जिसके साथ आपने अच्छा किया है. कोई ना कोई व्यक्ति जरूर आपकी लाइफ में उस चीज को सॉल्व करने के लिए आता है और ये मैंने देखा है. तो इसलिए हमेशा अपना अच्छा काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए.
और ये मेरी खुद की पोयम है, क्योंकि मैं पानी से बिलोंग करती हूँ, वाटर मेरा वाटर एरिया है, तो ये मैंने लिखी है कि आप हमेशा पानी की तरह बहिए. So philosophy of water, a hidden treasure. It flows, it follows a path which is unexplored, and it hurdles, it fights in own way. यानी कि जैसे पानी जो है पत्थरों से और इन सब से टकराते हुए भी अपना रास्ता बना लेता है, तो वैसे ही आपको बढ़ते रहना है. And in peace it stays grounded, in being it flows to the depth, and in confrontation it stays gentle, in action it aligns to the timing. In every circumstances it flows, यानी करना क्या है आपको, हमेशा चलते रहना है. And every drop, the water is very magnificent, and in beauty it's very flexible, and its stress is still fundal, and in meeting with the ocean it teaches you, you and me are nothing but the same. You and me are nothing but the same. So what you have to do, be like the water in life, humble, flexible, and be with the continuous flow of your life. And the most important thing, the size of your success is measured by the strength of your desires and the size of your dream, so that you can handle the disappointments along the manner. The failures छोटा छोटा सा पार्ट है चीजों का, और एक ऐसी चीज बनाइए जिसमें failures, और जितना जल्दी फास्ट फेल होंगे ना उतना जल्दी सक्सेसफुल भी होंगे. So the things is like that, be on the way, accept the failures and success in a similar manner, and be with the flow, keep going, keep riding. So I wish you all the girls on this occasion a good luck ahead, have a dream high, and whatever in the phase of your life today, you could, like, I pray to all of you कि आज आप एक कली और एक बहुत खूबसूरत फ्लावर बन के निकले. I pray to you all, for you a very very good luck for a very good and the successful life ahead. Thank you so much. May I request? Thank you so much, ma'am. May I request our Assistant Commissioner Benny Joseph sir? Ji sir. Yeah, to deliver the vote of thanks. Thank you, Mr. Srinivasan. Hello. Yeah. Any question? Okay. Hello, everyone. We witnessed a very highly inspiring words from Dr. Safia Khan, and she always, kept innovation as her passion. I was also very much touched by her words. As a small girl, she dreamed of playing with DNA, and afterwards, she got just like our Dr. Kalam, his catchy words, dream big, think big. Finally, our dreams will, God also will help us to realize that dream. So, in the life of Dr. Safia Khan, exactly that's what happened. As Dr. Kalam said, her dream, there is some noise interference. Kindly, please keep the microphone mute. Then the most wonderful thing I noticed is that she developed a technology, affordable technology for defluoridation of water. So, madam, from DNA itself is a sign of life, and water is also. So, it is intrinsically linked. I find, there is a lot of, just like you are thinking, things are also, all events in your life, that's also happening in that, wonderful sequence. From a DNA, you finally, the small philosophical poem you shared, that's also showing that, that, lot of things, lot of lessons you shared with our students. And really, DST and Navodaya Vidyalaya Samadhi, we are making all our sincere endeavors to make future scientists. And your interaction with our students really is a great motivation, and will think the style of their, it will change the think pattern of our students. So we are all very much, all our students, Navodaya Vidyalaya Samadhi, DST, we are all joined together in expressing our heartfelt gratitude to you, and we will look forward to you, and we pray, we wish you all the very best. You are all this, sagacious journey for making the life of, our common people
very smooth, and especially your efforts to provide safe drinking water and your continuous research work on biofuel. All these things are very much going to change the life of our Indians. And proud, we feel proud about your work, and it's a golden opportunity for our students to get exposed to your words and your thinking and also your vision. So once again, on behalf of everyone, we express our gratitude and wish you all the very best. God bless you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Sir Benny Joseph. Thank you so much. Each and everyone who is listening to Thank my you. talk. Yeah. And for your warm wishes also, because I want to make this enterprise or make my vision and dreams comes true in my life. I'm working hard a lot. So this technology should come in the market. Yeah. As a bio entrepreneur, all the very best for you, for all futures. Thank you. Thank you so much. Thank you, Meenu. Thank you. And thank you each and every person, and all good luck to the all young girls who are like listening this YouTube and all this is streaming. And if you have any questions in the coming future, you can contact me. Okay, sufiakhan@gmail.com. Thank you so much. Okay. Thank you.